Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 1, and welcome back to the maths class. Today is lesson number 2 of the chapter whole numbers. I hope आपने lesson number 1 को बहुत enjoy किया होगा, concept भी आपका बहुत हद तक clear हुआ होगा. और if you remember what was our SLO for that lesson, identify numbers from 1 to 9. तो उसकी हमने काफ़ी सारी activities की थी, group में भी, individual भी, और आपने मेरे साथ बोर्ड पे भी की थी. तो आई होप दैट वी हैव अचीव्ड दैट SLO. और आज हम जिस SLO पे चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं. आज हमारा लेसन नंबर 2 एंड द सेकेंड SLO सेज आइडेंटिफाई जीरो एज अ नंबर. मतलब आज हम जो आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटीज करेंगे वो नंबर जीरो के बारे में करेंगे. I know and I remember that you have done this concept already, so we will move on with it. But dear teachers, you know where to get the lesson plan from our YouTube channel. You can subscribe and download it from the link of the same video in the description box. So let's move on next and see what we have done earlier in ECCE. Begin to develop an understanding of the concept of zero, meaning nothing. Identify and write correct numerals to represent numbers from 0 to 50. ये दो ELOs हमने ECCE ग्रेड में पढ़े थे, यानी हमें जीरो मीनिंग नथिंग का भी मतलब पता है और हम 0 से 50 तक की राइटिंग भी कर सकते हैं. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट, लेकिन टुडे आफ्टर दिस लेसन you will be 100% able to identify zero as a number and tell that how do we use zero when it comes to a certain situation. So let's see, what do we have? I have a small warm-up activity and this is a very sweet activity. Dear teachers, kindly give each student one candy. तो बच्चों, टीचर अभी आपको एक कैंडी देंगी, आपने वो ले लेनी है. उसके बाद आपने उस कैंडी को खोल के खाने के बाद क्या करना है? रैपर को बिन में फेंकना है, ठीक? और उसके बाद खाने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपके पास अब कितनी कैंडीज बच गई. तो इससे हमें ये पता चला कि पहले आपके पास एक कैंडी थी जो आपने खा ली एंड देन इट वाज फिनिश्ड. So when some number is finished, what do we do? That is our question for today. If you remember, we counted 9 fingers, 5 and then 6, 7, 8, 9. यहाँ तक तो हम पहुंच गए, right? And we also know how to write the number 9. Good. But what we are doing today? We are identifying zero. So what is zero? Yes, when you close all your fingers, then what happens? तो फिर हम कौन सा नंबर इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं नंबर जीरो. तो जनाब जीरो है in a round shape. I know how you write zero. You go round and that's how we write zero. और इसका नाम क्या है? Zero. जीरो. अब जीरो को हम इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं, अभी आपको ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी. डियर टीचर्स, इनको बोर्ड पे जीरो लिखवा के और कुछ आसपास से फ्लैश कार्ड की चीज़ों से रिलेट करके इनको ज़ीरो की आइडेंटिफिकेशन करवाएं और उसके बाद फिर हम एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं. So my dear children, welcome back to Miss Adaf's class once again. I hope टीचर ने आपको ज़ीरो बोर्ड पे भी लिख के और फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी दिखाया होगा. लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने लगी हूँ कि ज़ीरो की आइडेंटिफिकेशन पहचान करने के लिए हम नंबर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं और जब हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है. तो आपके सामने मैं कुछ पिक्टोरियल एग्जाम्पल दूंगी, यानी पिक्चर की मदद से, और कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द पिक्टोरियल. यानी आपके सामने मैंने अपने बोर्ड पे ड्रॉ की हैं. हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज कैन यू सी? 3 स्ट्रॉबेरीज. ठीक है जी. तो आई एम गोइंग टू यूज अ मार्कर and I am going to write the number 3. I know you know how to write number 3. So these are 3 strawberries.
Is this how we write number 3? Yes. Now, if I eat one strawberry, then what number am I going to use to show the remaining strawberries? So, I'm going to show the number 2. Is this how we write it? Good. Now, I'm going to eat another strawberry. There it goes. I'm going to rub it off. And then 1. 1 strawberry left. 1 strawberry left. अब ये भी strawberry मैं खा लेती हूँ. अब यहाँ पे क्या है? What do we have here? We have nothing. So how do I show it? I show it by writing the number 0. First there were 3 strawberries, then 2, then 1. Now there is no strawberry here. So I am going to show it by writing the number 0, that there are no strawberries. Okay, now let's look at the example. I hope आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा. अब हम अगली example करते हैं अपने toy cars के साथ. So let's see, what do I have here? How many cars do you see? 1, 2, 3, 4. अब तो आप quickly भी count कर सकते हैं. Good. So what number shows that how many cars I have here? Okay, I found the card. This is the number 4. So I'll put it here. All right, so that you can see it. So out of these 4 cars, my 1 car goes away. So how many left now? 3. Oops. Yeah, good. I got it. 3. So the 3rd car also leaves. Bye-bye. Now what? 2. I got my other car, number 2, and my car number 2 is also going away. Beep, bye-bye, car number 2. So, only 1 car left, and my car number 1 has also left. So, no cars here. 0 cars left. 0. So, there are 0 cars. I hope now you understand that when you have a picture and objects, तो हम 0 को कैसे दिखाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. So teachers, आप बच्चों से इस तरह की different चीज़ों की मदद से या आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए या पेपर कप्स ले लीजिए और उनको दिखा के उसकी रिवर्स काउंटिंग अगर आप करेंगे तो आपको 0 का कॉन्सेप्ट समझाना ज़्यादा ईजी हो जाएगा. So carry on with the activity. I hope 0 identification is going to be easy for you, and then come back for the group work and individual activity. तो जनाब, देखने में 0 कितना इजी और समझने में भी कितना इंटरेस्टिंग. जब आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको एग्जिस्ट होके और उनको एमिट किया, यानी उनको होने के बाद उनको जब हटाया होगा और देखा होगा आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो 0 का कॉन्सेप्ट आपको यकीनन क्लियर होगा, क्योंकि हमने जो SLO स्टार्ट किया था, आइडेंटिफाई 0, उसको बाय द एंड ऑफ द लेसन हमने हर सूरत अचीव करना है. तो अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा. तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा बुक का पेज क्या कह रहा है. जनाब, हमारा बड़ा कलरफुल सा बुक का पेज है और उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, आइडेंटिफाइंग फॉर द नंबर ऑफ 0. अब इस स्टोरी में क्या हो रहा है जी, चलें अब बुक्स को छोड़ दीजिए, अपनी हर चीज़ को साइड पे रख दें और अटेंटिव हो जाएं बोर्ड की तरफ. बोर्ड पे देखिए जनाब, देयर इज अ बॉय इन द स्टोरी एंड ही सेज, हेलो, माय नेम इज अली. And Ali has got 4 bananas. 1, 2, 3, 4. अली के पास 4 bananas हैं. I hope आपको बनाना अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है.
तो अली ने क्या किया, अली के 4 नॉटी फ्रेंड्स हैं, अहमद, इम्तियाज, उमैर और मेहरान। तो अली ने अपने 4 बनानास अपने फ्रेंड्स को दे दिए। फर्स्ट बनाना उसने दिया अहमद को, सेकंड इम्तियाज को, थर्ड उमैर को और फोर्थ मेहरान को। तो जब उसने अपने सारे बनानास दे दिए, तो अली के पास क्या बचा? सोचे सोचे, व्हाट लेफ्ट नाउ? सो यस, यू आर राइट। अब क्या बचा? अब बचा 0. यस, सो हियर इज हाउ वी यूज द नंबर 0। जैसे अभी आपने एक्टिविटी देखी स्ट्रॉबेरी वाली और कार्स वाली, तो इस स्टोरी में भी अली आपको बता रहा है कि अब मेरे पास देयर आर नो बनानास, सो देयर इज 0 बनाना। गुड। सो आई होप जब आपको रिवर्स काउंटिंग हम करते हैं तो नाउ यू नो दिस इज 5 4 3, let me write 5 4 3 2 1, and then we show no fingers with the number 0. 0 is a number and very very important in maths. So जैसे हमने 1 से 9 तक नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन की थी, 0 भी एक नंबर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और आपको इसकी समझ बिल्कुल होनी चाहिए। So let's see what do we have now for you. We have the group work activity. Now 0 का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि आपको 0 के बारे में क्या समझ आया और कैसे करना है। टीचर आपके ग्रुप्स बनाएंगी 3 और 4 के, और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं क्लास में से, जैसे इरेजर्स, शार्पनर और पेंसिल्स, और अपनी कोई स्टोरी बना के उसको अपने फ्रेंड्स को, अपने टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कार से और स्ट्रॉबेरी से। तो प्लीज़ डियर टीचर्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और बच्चों को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की मदद से इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने दें, एंड देन वी विल कम बैक। गुड, आई होप कि आपने एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा, और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपने शार्पनर और इरेजर के साथ कि आई हैड 4 एंड नाउ 3 एंड देन 2 एंड देन 1 एंड देन 0, तो आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर मेंबर ने अपनी छोटी सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा, अपने अपने तरीकों की छोटी सी स्टोरी बना के। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नाउ। वी हैव आवर इंडिविजुअल वर्क, दैट मीन्स कि अब आप काम करेंगे अपनी उस बुक पे या वर्कशीट पे या कॉपी पे जो मिस सदफ ने आपको कही है करने के लिए। तो जनाब अभी आपने क्या करना है, ये देखिए जी, इतनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी एक वर्कशीट है जो टीचर आपको देंगी। डियर टीचर्स, इफ़ यू हैव प्रिंटेड दिस आउट फाइन, अदरवाइज आप इनको ये कॉपी के पेज पे भी बना के दे सकते हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, क्या आप बता सकते हैं हमने क्या करना है? आज हमारा कौन सा नंबर है? 0। तो इस ऑक्टोपस ने बहुत सारे बबल्स बनाए हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स हैं जो आपको पता है। उनमें से आपने ढूंढना है नंबर 0 और उस बबल को कलर करना है। आप क्रेयॉन यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं, जो मटेरियल आपको टीचर देती हैं आप यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू कलर ओनली द बबल विद द नंबर 0 इन इट। तो ये छोटी सी बड़ी कलरफुल सी एक्टिविटी है, 3 to 4 मिनट्स है हर बच्चे के पास करने के लिए। सो क्विकली डू इट एंड कम बैक। तो जनाब अब तो बबल्स में भी कलरिंग होगी और 0 को हमने बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। इसका मतलब है अब अगर मैं आपको कहीं पे 0 लिख के दिखाऊं या बोल के पूछूं तो आप मुझे उसका नाम भी बता सकते हैं और उसकी शक्ल भी दिखा सकते हैं। सो वेरी वेल डन ग्रेड 1। सो अब टाइम आया है रैप अप एक्टिविटी का। अब ग्रुप एक्टिविटी और इंडिविजुअल वर्क के बाद आपको पता है मिस सदफ आपको लेसन के बाद का कुछ काम देके चली जाती हैं और आप उस काम को करके नेक्स्ट डे लेके आते हैं। सो कम इन द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ 0। अब आपने क्या करना है कि जो आपने स्टोरी उनको सुनाई थी 0 की अपनी से बना के अपने मेंबर्स को, अब आपने क्लास के फ्रंट में सुनानी है। और अगर आप मार्कर से लेके बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके सुना देंगे तो बहुत मजा आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करें, आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप बलून्स ड्रॉ कर सकते हैं और आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन यू कैन गो इन दी बैकवर्ड ऑर्डर टू शो द नंबर ऑफ 0. So let's see what do we have now. Time for some homework.
तो जनाब होम में हमने क्या करना है, ये जो पिक्चर स्टोरी आपके पेज पे बनी हुई है बनाना वाली, ये आपने अपनी मदर को सुनानी है। और अगर हो सके तो कोई रियल एप्पल्स या बनानास ले लीजिए और अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को भी ये स्टोरी सुनाएं और उनको बताएं कि जीरो भी एक नंबर है। और आज हमने जो SLO सीखा, आइडेंटिफाई जीरो एज अ नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उन तक पहुंचानी है। उसके साथ साथ एक छोटी सी एक्स्ट्रा वर्कशीट जिसमें आप जीरो की कुछ राइटिंग करेंगे और कुछ कलरिंग करेंगे. So dear teachers, you can explain them the worksheet, and this worksheet is available in the link below. I hope that you have enjoyed the lesson. इस वर्कशीट को करके टीचर के पास लेके आइए, उनसे चेक करवाइए ताकि वो अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सके. So I hope it was a good day and a good lesson. You enjoyed learning the identification of the number zero. See you in the next lesson with the next SLO. Thank you and Allah Hafiz.